Good morning, students. Now we will continue the third chapter of agriculture with the next topic, and the topic is agrarian reforms or reforms in Indian agriculture. Agrarian means, I earlier told, agrarian means agriculture, with a view to tackling the problems of Indian agriculture. The government has taken a series of reforms. Reforms का मतलब होता है सुधार करना. Measures since independence. These reforms are known as agrarian reforms. जो agriculture पर reforms हुए थे, that is known as agrarian reforms. Now these agrarian reforms are classified into three. First is technical reforms, the second is institutional reforms, and this is also known as land reforms, and the last one is general reforms. Now in technical reforms, the reforms means the change in techniques like use of HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides, and these are. In institutional reforms or land reforms like intermediaries or regulation of rent, holdings, ceilings, cooperative farming, and these things. And now remaining are included in general reforms like expansion of credit facilities, then price support policy, regulated markets, and these are. Okay, so now we will discuss all the reforms one by one, and then the success or how much we achieved through these reforms, and after this the green revolution. Okay, so now the next is number one is technical reforms. Technical reforms, following steps have been taken by the government to upgrade the level of technology in agriculture, Indian agriculture. So technical reforms means use of modern technology, so that is known as technical reforms. Now the first is use of HYV seeds, that is high yielding variety seeds. Since 1865, high yielding variety seeds have replaced the conventional varieties. Convention मतलब का पुराना जो चलता था. HYV seeds, especially relating to wheat, bajra, rice, maize, jawar, cotton, had led to a substantial rise in crop productivity, जिससे production increase हुआ. And this breakthrough is popularly known as Green Revolution. So this is known as Green Revolution. Due to this, the production of or National Seeds Corporation have been set up for this, and in 2016-17 nearly 6,20,743 quintals of certified seeds were distributed. Okay. Now the next is use of chemical fertilizers. Chemical fertilizers, then use of insecticides, pesticides, etc. Okay, so chemical fertilizers are being increasingly used to enhance productivity. Then in 2017-18 nearly 265.9 lakh tons of chemical fertilizers were used. Now use of insecticides and pesticides for crop protection, crops को बचाने के लिए उस पर जो स्प्रे किया जाता है. In that case 14 central plants protection center, ठीक है, in that case 14 central plant protection centers have been set up, and for plant protection integrated pest management program also started. Okay, now the scientific farm management practices, कि farm को किस तरह से manage किया जाए. Stress has been laid on scientific cultivation as against conventional farming. Scientific methods of farming relate to selection of crops and their quality, preparation of soil, rotation of crops, selection of seeds, use of fertilizers besides others. ठीक है, तो मतलब किस तरह से क्रॉप को, कौन सी क्रॉप का सेलेक्ट करना है, उसके लिए कैसे सॉइल तैयार करना है. रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब होता है टाइम टू टाइम क्रॉप को चेंज करना, कि खरीफ की क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, फिर जब रबी सीज़न आएगा तो रबी क्रॉप्स का, तो टाइम टू टाइम रोटेशन करना क्रॉप्स का, ताकि सेम लैंड पर बार बार जब एक ही क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है तो वो सॉइल इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट रोटेशन ऑफ क्रॉप्स शुड बी देयर. देन सिलेक्शन ऑफ सीड्स, देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो इन दिस कनेक्शन intensive agricultural area program has been introduced. Integrated rural development program has been launched to speed up the process of growth in agriculture. ठीक है, तो इसके लिए ये सारा स्टार्ट किया गया. दैट इज़ इंसेंटिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, देन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये सारा स्टार्ट किया गया.
Then, as many as 23 agriculture universities are engaged in promoting research. तो इन universities जहाँ पर agriculture universities भी इंडिया में सेटअप की गई. Then mechanized means of cultivation. Mechanized का मतलब using of new machines, new technology. Several measures have been taken to spread the use of mechanized means of cultivation. To enable the small farmers to buy agriculture machines, cheap credit facilities are provided by cooperative societies, small and marginal farmer agencies, regional rural banks, जिनको बोला जाता है RRB, इनको RRBs बोला जाता है. ओके, इन सबको स्टार्ट किया गया था. ये सब तो इन सबको स्टार्ट इंडिया में किया गया था. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज land reforms or institutional reforms. Okay, so three types of reforms: technical reforms, changing techniques like. Now the second is institutional reforms, or it is also known as land reforms, कि land से related क्या क्या reforms किए गए. Now the first is abolition of intermediaries. जो intermediaries थे between the government and the farmer, like जमींदार, महाजन्स, तो उनको abolish किया गया, उनको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया. intermediaries को बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि now government is directly connected with farmers and farmers are directly connected with the government only. Okay, तो इन जमींदार के महाजन्स के रोल को abolish किया गया. Now the second is रेगुलेशन ऑफ रेंट. रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब कि जो रेंट एक फ़िक्स किया गया, जो पहले रेंट लेते थे ज़मींदार, सो रेंट को फिक्स कर दिया गया. दैट इज़ दीज आर नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप. तो जो रेंट किससे लिया जाता था? फार्मर से. तो वो 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ द क्रॉप से ज़्यादा वो नहीं होगा. नाउ दिस नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करना. अब कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हिज स्कैटर्ड होल्डिंग्स हियर एंड देयर. ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इफ़ अ फार्मर इज हैविंग वन पीस ऑफ लैंड एट दीमापुर, अदर पीस ऑफ लैंड एट कोहिमा, अदर पीस ऑफ लैंड एट रंगा पहाड़, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर दैट फार्मर बिकॉज इफ़ ही हैज़ small land areas of land that place, then it increases cost of production, there is loss of time also. So in that case तब गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उन सारे फ्रेगमेंटेड एरिया से उनका ज़मीन का एस्टिमेट किया था कि कितना एकड़ ज़मीन है, और वो टोटल ज़मीन उनको इट वॉज गिवन टू एट वन प्लेस ओनली, उतना ही उनको एक प्लेस पर दे दिया गया. नाउ इट सेव्स टाइम, इट सेव्स एफर्ट्स, और वो वहाँ पर मशीन्स को यूज़ इजीली कर सकते हैं. तो इस तरह से दैट इज़ नोन एज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग. सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम. With a view to promoting quality in the distribution of land, ceiling has been imposed. Ceiling of holdings. Okay, it means the maximum size of cultivatable land holdings. कि इतना ही उनके पास land holdings होगा. If any person or any farmer or any zamindar, if he has more than this land, then if he has the surplus land, then the surplus land will be taken from them, उनसे ले ली जाएगी, and it will distribute to the landless laborers. तो उन लोगों को ये distribute कर दी जाएगी. Okay. देन द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग. कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलजुल कर करना, मिलकर काम करना. सो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज एनकरेज्ड टू एनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स. तो जब लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो उनका बार्गेनिंग पावर्स को वो इंक्रीज करता है, वो इजीली बार्गेन कर सकते हैं और अपना प्रोड्यूस का वो हायर प्राइस ले सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट land reforms. Now the next is general reforms. अब जो बच गया that is general reforms. Now the first is expansion of irrigation facilities. irrigation projects start किए गए इंडिया में. direct permanent means of irrigation start किया गया. So when at the time of independence, जहाँ पर इंडिया में जो irrigation facilities थी, only 17% of land जो आता था अंदर irrigation के, now
टोटल 45% ऑफ लैंड अब उसके अंदर आता है. ओके, सो दिस इज इंक्रीज और एक्सपांशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़. नाउ द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट मतलब उनको पैसे फिनेंस अवेलेबल करवाना, किसको? फार्मर्स को. इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड started in India, commercial banks started in India. So these all financial system started in India to this NABARD. Okay, so to complete the need of the farmers, कि उनका जो भी फिनेंस का नीड है, उनका जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड करवाना. सो इस तरह से ये स्टार्ट किया गया था टू give them credit facilities. देखो at present there are 94,647 primary agricultural credit societies and 768 primary cooperative agricultural and rural development banks in India. ओके, देन द नेक्स्ट इज इसी में है. इन 2017-18 फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द फार्मर्स वॉज एस्टिमेटेड टू बी ₹1,179,425 crores. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रेगुलेटेड मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. तो फार्मर्स ने प्रोडक्शन कर दिया, बट अगर फार्मर को यही नहीं पता है कि रेगुलेटेड मार्केट कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है, तो ये सारी उसके लिए प्रॉब्लम्स थी. सो रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. ठीक है, दिस इज विद अ व्यू टू ऑफरिंग रिन्यूमरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स. रिन्यूमरेटिव मतलब जो उनको जितना उनका खर्चा हुआ, जितना उनका एक्सपेंसेस है, एटलीस्ट उनको उतना तो मिल ही जाए, एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडिलमैन कौन हुए? जमींदार, महाजन, वही सारे मिडिलमैन हुए. And cooperative marketing societies have been established to enhance the bargaining power of the farmers. बार्गेनिंग, उनका जो फार्मर्स का बार्गेनिंग पावर्स को इंक्रीज करने के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ को स्टार्ट किया गया. ओके, then the next is price support policy. Price support policy, this is also known as MSP, that is minimum support price. Minimum support price कौन देता है? गवर्नमेंट देता है to the farmers for his produce as to protect him against uncertainty of the market. Okay, कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, इन दैट केस फॉर द फार्मर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट हिज इन्वेस्टमेंट. ओके, टू गेट हिज इन्वेस्टमेंट मनी. उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट इट अगेन, इन दैट केस फार्मर्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है. एक्सेस में अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो उनको इतना पैसा नहीं मिलता है वॉट एवर दे नीड. ओके, उस टाइम में गवर्नमेंट क्या करती है? उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस देती है. मतलब गवर्नमेंट उनको ये कहती है कि अगर आपको मार्केट में इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है तो नाउ यू सेल योर प्रोडक्ट टू मी ओनली, आप मुझे सेल कर दो. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? उनको एक सपोर्ट प्राइस देती है और उनसे वो प्रोडक्ट ले लेती है. अब गवर्नमेंट क्या करेगी उस प्रोडक्ट का? गवर्नमेंट क्या करती है? उस टाइम पर उन प्रोडक्ट को लेकर बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, बफर स्टॉक्स होते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स को रख लेती है, सेव करके रख लेती है. और एट द टाइम ऑफ नीड, जब मार्केट में नीड होती है, तब गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आती है. तो गवर्नमेंट को भी अपना पैसा मिल जाता है और फार्मर्स को भी गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट देकर उनको सुसाइड होने से या उनको दूसरी प्रॉब्लम्स से बचाती है. तो दैट पॉलिसी इज़ नॉन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, जो गवर्नमेंट सपोर्ट देती है किसको? फार्मर्स को. तो इस तरह कई बार ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है एंड फार्मर इज़ नॉट एबल टू गेट हिज इन्वेस्टमेंट मनी, सो इस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफर्स देम मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी. तो इस तरह से ये सब होता है. सो दीज आर द जनरल रिफॉर्म्स. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिफॉर्म्स अब हमने क्या अचीव किया इन रिफॉर्म्स से? So the main achievement is green revolution. Thanks to agrarian reforms, there has been a substantial improvement in Indian agriculture. काफ़ी improve हुआ Indian agriculture को, जो पहले backward था, जो stagnant था, उसमें काफ़ी increase हुआ. And the main benefit is of green revolution. Green revolution was started in India.
ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप एंड रेवोल्यूशंस मतलब स्पर्ट। तो इस तरह से एक क्रॉप स्पर्ट आया था, क्रांति आई थी और इस तरह से उसको स्टार्ट किया गया था इंडिया में इन द ईयर 1967-68। ओके, इस तरह से उसको स्टार्ट किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन सारे फूड ग्रेन्स पर स्टार्ट किया था, बट जो मेन बेनिफिट मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन का दैट वाज फॉर वीट प्रोडक्शन। वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था इंडिया में, सो दैट्स वाई ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज वीट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को वीट रेवोल्यूशन को भी बोलते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन से? तो नाउ द फर्स्ट इज स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। Productivity of wheat was estimated at 3408 kg per hectare in 2018-19 compared to 660 kg per hectare in 1951. राइस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था, मेज़ में भी बढ़ा था, बट सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ था दैट इज़ इन wheat. That's why green revolution is also known as wheat revolution. Then the use of HYV seeds increases, then the use of techniques increases, use of insecticides and pesticides increases. तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स आए थे। Then the third is shift of subsistence farming to commercial farming. हमने पढ़ा है subsistence when farmers produce for their own, that is known as subsistence farming. लेकिन धीरे धीरे farmers का आउटलुक चेंज हुआ और वो कमर्शियल फार्मिंग उन्होंने करना स्टार्ट कर दी। कमर्शियल फार्मिंग मतलब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे और उनको मार्केट में ले जाकर भी सेल करते थे। देन चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, वो धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज थे उनको छोड़कर न्यू टेक्निक्स का यूज़ करने लगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे। देन सेल्फ सफिशिएंसी आई। तो इस तरह से ऑल दीज आर द benefits of green revolution. Now the next is gains from of green revolution significant but not sufficient. So now the some limitations also are there because green revolution जो adopt किया गया था that was only for limited crops. Revolutionary rise in output is confined mainly to the production of food grains. बहुत ज़्यादा जगह उसका यूज़ नहीं किया गया था, like commercial crops जूट, कॉटन, टी, इन सब के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ नहीं किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो यूज़ था वो मेनली कहाँ पर किया गया था? सारी फूड ग्रेन्स के लिए ही किया गया था। अनइवन स्प्रेड मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो इंडिया के हर स्टेट्स को नहीं मिला। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट था वो किसको मिला? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सबको ज़्यादा मिला, बट यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा में इतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट बेनिफिट नहीं हुआ। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मिंग्स, इसीलिए छोटे छोटे लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड है उनके पास, तो वहाँ पर HYV सीड्स का यूज़ करना और इतना फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो ये सारा भी थोड़ा प्रॉब्लम आया था। एंड द लास्ट इज इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन द इकोनॉमिक डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है गैप, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, इट हैज़ सब्सटेंशियली राइजन ओवर टाइम, वो बढ़ता चला गया, पॉवर्टी बढ़ती चली गई, ठीक है। इनडेप्टनेस मतलब लोग डेप्ट में फंसते चले गए, तो मतलब ये ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रॉब्लम्स हैं और सुसाइड केस इंडिया में बढ़ते चले गए। तो थैंक्स का मतलब उसने एक तरह से उसको क्या किया है, एक तरह से उस पर उसने टोन मारा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई इंडिया में। तो स्टिल वन क्वेश्चन इज दैट डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? डेफिनेटली यस, इंडिया को आज भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। वी नीड डेफिनेटली इंडिया नीड्स सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू इंक्रीज अगेन प्रोडक्टिविटी नॉट ओनली इन फूड ग्रेन्स बट इन अदर क्रॉप्स ऑल्सो। सो वी नीड डेफिनेटली वी नीड सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन. And you are free to write your point of view also. So this about all related with the agriculture. Okay, so this is about the whole chapter, the features, the problems, the policies of agriculture. Now in this chapter the important questions are like problems and features, so you all know you all are able enough to write the problems and features of agriculture, but the main important question is land reforms. Write the another name of land reform, that is institutional reform, or what are the features of land reform. So you just read or learn all the three reforms, that is technical reforms, land reforms and general reforms, and just define green revolution. You have to know about
about green revolution, when it was started, on which food grains green revolution, for which food grains green revolution was started. So you have to know about all these questions. Okay, so just learn all these points, and these are very important questions in point of view your exam. Okay, so this is for now. So just read the whole chapter again, and if there is any confusion, then just contact to me. Okay, thank you, have a nice day.